Hello students, this is my first digital class with you regarding to the class 9 science, and I am going to discuss with you your chapter number 1, that is matter in our surrounding. Students, it's very simple chapter and I am going to explain it very well with you. Students, first of all we should know that what is the matter. Okay, so matter. All of you know very well that matter. The meaning of matter is anything which have mass and occupies space is known as matter. Is known as matter. आप सोच रहे होंगे कि इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा जिसके पास क्या होना चाहिए, जिसके पास मास हो और जिसके जो शेप को ऑक्यूपाई करेगा, उससे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे मैटर. स्टूडेंट्स, मैटर एयर हो सकती है, मैटर मिल्क हो सकता है, मैटर वाटर हो सकता है, मैटर एयर, मिल्क, वाटर, गोल्ड, ये सब मैटर हो सकते हैं बिकॉज इन सबके पास मास भी है और ये सब के सब स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. दीज ऑल आर दी मैटर्स. तो सर मैटर है क्या नहीं? तो स्टूडेंट, जो मैटर नहीं है वो समझिएगा. लव, it is not. Thoughts, it is not matter. Hunger, it is matter. इनमें से कुछ भी मैटर नहीं है. The reason is that, क्या रीजन है इसके पीछे? The reason is that because न तो इनके पास वेट है और न ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं. Okay, so matter है anything which have mass and occupy space is known as matter. Now try to understand properties of matter. Properties of matter. Properties of matter. Properties of matter. First of all matter are made up of very teeny particles. Are made up of very teeny particles. All matter are made up of very teeny particles. Second, particles of matter are in random motion. Particles of matter are in
random motion. Third, particles of matter having space between them, particles of matter having kinetic energy. Particles of matter having kinetic energy. तो सीधी सी बात है यार कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कोई भी मैटर हो। सिमिलरली जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, लगातार मोशन करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो किसी में हो। सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी होता है। क्लियर? एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. ओके, आई विल प्रूव दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, नाउ try to understand classification of matter. Classification of matter. All of you know that. Classification of matter. Classification of matter. Classification of matter. Student, basically there are two bases of classification. Two bases for classification of matter. दो बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर. फर्स्ट वन इज द फिजिकल बेसिस. Second is the chemical basis. एक तो आप फिजिकल बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा केमिकल बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फिजिकल बेस की क्लासिफिकेशन में यू कैन सी दैट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Solid, liquid and gas. And on the basis of chemical classification, these are of two types: pure substances और दूसरा है आपका मिक्सचर. Now pure substances is of two types: elements and then compound. And mixture of two types: homogeneous next heterogeneous. Okay, so this is the classification of
You have classified matter. There are on basis of two bases. First one is the physical, second one is the chemical. Basis of physical classification, these are of three types: solid, liquid and gas. And basis of chemical classification, these are of two types: pure substances and mixture. Pure substances of two types: elements and compounds, and mixture is of two types, that is the homogeneous and heterogeneous mixture. Now, elements is of three types: metal, non-metal, next metal. And compound is also of two types: organic and inorganic compound. Organic compound and inorganic compound. So now I am going to classify. So I am going to describe you solid, liquid and gas. All of you try to understand. First is solid. स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे घर में, जितने सारे ये जो आपके पॉट्स होते हैं घर में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं घर में, और एलमिरा है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके यहाँ विच have the solid shape, but you never think that why they are solid. कभी आपके मन में नहीं आया कि सॉलिड है क्या, सॉलिड है क्या वास्तव में? स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ सॉलिड इज दैट, सॉलिड का मतलब है द स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की वह स्टेट, द स्टेट ऑफ matter in which the state of matter in which shape and volume is fixed, जिसकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, इन केमिस्ट्री लैब यू हैव सीन टेस्ट, इसका शेप भी फिक्स है. घर में देखा होगा आपने एलमिरा, these are the solid in nature because they have fixed shape and volume. इनके वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड. सो नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नंबर properties of first, solids have fixed shape and volume. मेरे मन में आया why solids have fixed volumes, ऐसा क्यों होता है इसके वजह से? बिकॉज सॉलिड
constituent particle of solid, constituent particles of solid, constituent particles of solid having very high force of attraction. Very high force of attraction. Between them, very high force of attraction. The constituent particles of solids are joined to each other. These are the constituent particles and having very high force of attraction between them. Now, 2 points is clear. Next point. Solids have very high melting point. Solids have very high melting point. All of you think that कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? सर मेल्टिंग पॉइंट ही नाम है, तो मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच solid converts solid start to change in liquid, जो सॉलिड है वो स्टार्ट कर दे चेंज होना किसमें? लिक्विड। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सॉलिड स्टार्ट कर देगा लिक्विड में चेंज होना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो हियर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी हाई। नंबर नेक्स्ट फोर्थ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड cannot move from one place to another. One place to another. That is having very low tendency of diffusion. Having very low tendency of diffusion. Low tendency of diffusion. लो टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डिफ्यूजन क्या है? तो स्टूडेंट डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल
movement of particles from higher concentration to lower concentration. From higher concentration to lower concentration. For example, आप स्प्रे को यहां मारते हैं, है ना, और खुशबू कहां तक जाती है? दूर तक। जब आप उसको यहां पुशअप करते हैं तो यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और उसकी स्मेल दूर तक जाती है। इट मीन्स कि जो दूर है वहां पर इसके पार्टिकल्स फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट फैक्ट, solids have very high density. Solids have very high density. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या है? तो D इज इक्वल टू होता है m अपॉन V, m that is mass upon volume. Mass upon volume. Mass of solid upon volume of solution. छोटा सा टुकड़ा आयरन का बहुत भारी होता है, छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास होता है ना, इसीलिए इसकी डेंसिटी कैसी होती है? वेरी हाई। आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रही है। क्लियर है ना? चलिए मैं इंटरेस्टिंग पार्ट देख लेते हैं। तो सॉलिड समझ में आ गया ना? सॉलिड्स में आपकी 6 बातें बताई मैंने। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, उनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पता है, ये सारी प्रॉपर्टी वहीं से डेवलप हुई है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब उनके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? हाई होंगे। उनके मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? हाई होंगे। सीधी सी बात है यार, जब पार्टिकल्स बहुत कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो उनके मास भी कैसे हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इफ द मास इज मोर इन अ शॉर्ट वॉल्यूम देन डेंसिटी इज आल्सो मोर, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी हाई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उनके बीच में, तो डिफ्यूजन का तो कोई मैटर है ही नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग पार्ट की। एक्टिविटी नंबर 1, फर्स्ट एक्टिविटी डिस्क्राइब करने जा रहा हूं मैं। मस्ट रिमेंबर दैट, पे अटेंशन टू ऑल ऑफ यू। प्रूव दैट constituent particles matter is made up of large number tiny particles. लार्ज नंबर मैटर है वो लार्ज नंबर टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्लियर? सो प्रूव इट, प्रूव करिए इस बात स्टूडेंट्स। कैसे प्रूव करेंगे आप? टेक 5 ग्राम KMnO4। इस KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, dissolve it in 1 liter container. 1 liter container of water. 1 liter container of water. Color of water become violet. Color of water become violet. Third, now mix a small amount of this solution, a small amount of this solution in container having a small amount of water. A small amount of water. Having a small amount of water. समझेगा बात? 1 liter container, five gram camera food, stirring, mix, color become violet. Color become violet. Now add in different container of water. Hundred ml of water, 100 ml of water, 100 ml of water. When we mixed it, few drops, the all container become changed into violet color. Violet. जितने भी कंटेनर है सभी का कलर कैसा हो जाएगा? वॉयलेट। इसका मतलब ये बात प्रूव हो रही है, इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव हो रहा है कि दिस सॉल्यूशन कंटेन, दिस केमोफोर कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर, दे बिकम वॉयलेट. It means chemophore showing its effect in each and every container because the number of particles are present of chemophore is millions. Millions of chemophore particles are present. So first activity, I think all of you understand that. सभी को पहली एक्टिविटी समझ में आ जानी चाहिए, क्या थी? Matter are made up of very tiny particles. Number of tiny particles. Are you getting what is the meaning of number of tiny particle? The meaning of number of tiny particle is that, क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये है, नंबर ऑफ tiny particles का मतलब ये है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और जो अगर
इसमें ट्रांसफर किया जाए, इसमें ट्रांसफर किया जाए, इसमें ट्रांसफर किया जाए, तो सब में अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो आई थिंक आप सॉलिड को भी समझ गए होंगे और आप इस पहली एक्टिविटी को भी समझ गए होंगे। ना अब मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके साथ लिक्विड्स को। लिक्विड्स liquids लिक्विड्स अब लिक्विड्स क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर states of matter having state of matter having fixed volume states of matter having fixed volume but different वो स्टेट की मैटर जिसके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती, उन्हें हम लोग लिक्विड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क है, अभी इसमें रखा हुआ 1 लीटर है, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अभी ये क्या रहेगा? 1 लीटर मिल्क, बट इसका शेप कैसा हो गया? चेंज हो गया। क्लियर है ना? आपने इसको ट्रांसफर कर दिया इसमें, कितना है? 1 लीटर, लेकिन इसका शेप जो है वो कैसा हो गया? चेंज हो गया। क्लियर है ना? तो समझ गए होंगे आप लोग लिक्विड्स क्या है। लिक्विड्स वो स्टेट है जिसमें क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं लेकिन शेप कैसा होता है? डिफरेंट होता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं लिक्विड्स। नाउ प्रॉपर्टीज, having low force of attraction, low या less force of attraction, having less force of attraction, less force of attraction in comparison to सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? कम होते हैं। इस तरह से सॉलिड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? लो होंगे। हैविंग लो melting point and boiling point,
हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equal to atmospheric pressure. इसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे किसी का वेपर प्रेशर, जो वेपर बन रही है ना उसका प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो। समझ गया? नेक्स्ट ड्यू टू लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to less force of attraction between constituent particle liquids have tendency to flow somehow diffuse. We can say diffuse. It means having the tendency of diffusion. मतलब इनके पास डिफ्यूजन की टेंडेंसी नहीं होती। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी। लिक्विड्स की डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। पता है आपको क्यों लो होती है? बिकॉज थोड़ी सी जगह में, मतलब ज्यादा से वॉल्यूम में कम मास आ पाता है, इसलिए इनकी बेटा क्या होती है? लो होती है। दोनों में कंपैरिजन करा लेते हैं एक बार। बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, सॉलिड में ज्यादा होगा। किसमें कम होगा? लिक्विड्स में कम होगा। किसके मॉलिक्यूल फ्लो कर पाएंगे? लिक्विड के। किसके नहीं कर पाएंगे? सॉलिड के। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सॉलिड की। किसकी डेंसिटी कम होगी? लिक्विड की। क्लियर है ना? किसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे? सॉलिड के। किसके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे? लिक्विड के। अच्छा, ये बताइए जरा मुझे कि किसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होंगे? सॉलिड के। किसका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होगा? तो लिक्विड के। क्लियर है ना? तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो फाइनली आपको ये समझ में आया होगा सॉलिड और लिक्विड। इसी के साथ बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2, prove that particles of matter having space between them.
prove that particles of solids, particles of matter having space between them having space between them. Solution. Take 500 ml water, add 1 teaspoon sugar. Result. The level of water is not rise. Prove that particles of matter having space between 500 ml water. Add 1 teaspoon sugar. Level is so this is about the liquid. Okay, in next class I will discuss about the gaseous state and other properties of